Hi all my friends and students, welcome back to a new video. I hope all of you guys are doing great. So yeah, it just been a little late of uploading my videos and shooting all of them because never mind, okay. And yeah, in this video I'm just going to explain you all guys that today in this video again I'm going to explain you mastering modern world history. And yeah, today we are going to do a super fast revision whatever is possible till now because tomorrow is our exams. And yeah, I was just been studying my whole day and doing all of the stuffs, okay. See, tomorrow is our history test, okay, that is going to be of 20 marks, and the rest of the 80 marks is going to be terminal. Okay, now listen, what is the fact that in the tomorrow's history exam the thing that you guys have to do is a little very easy, you guys might think, but the question settler who will set the question has already making the questions very tough. The only fact that I am just not feeling very well and good enough happy is because the question settler that are present there or are that going to take the question have already made the question paper, and predicting their question paper is almost very hard. So yeah, today in this question video maybe I'm just going to do a paper leak video maybe. So the chapter that are coming in this history exam is chapter 7 and chapter 2. The thing that the chapter on which you guys should have to focus is chapter 7. The why chapter 7? Because chapter 7 is little easy, excuse me, okay. Chapter 7 is little easy and chapter 2 is much most complicated, and mostly the marks or the exam questions that will come is going to come from chapter 7. Now listen again carefully, why chapter 7, what is the means what the chapter 7 consists of. This video be it could be a mite long, so okay, adjust it, okay. See, Chapter 7, the spread of communism outside Europe and its effect on international relations. Means Chapter 7 is mostly based on that why, how the spread of communism means भाईचारा, यू कैन आप लोग हिंदी में समझ सकते हो कि कैसे करके जो एक इंसान के प्रति दूसरे इंसान का प्यार वो कैसे यूरोप से बाहर निकला और इंटरनेशनल पूरे इंटरनेशनल में फैल गया, और इस जो मतलब उस स्थिति पे जो बीत रहे थे अंजाम उसको कैसे मतलब इसने हेल्प किया। तो ओके, समरी, मैं समरी बोलने वाला हूँ, ठीक है, सीधा समरी ऑफ इवेंट्स, द वॉर इन कोरिया एंड इट इफेक्ट्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कोरिया में वार हो रहे थे, ठीक है, जो वार कोरिया में हो रहे थे और उसके इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी थे, ओके, आजू बाजू जो भी कोरिया में वार होने वाले थे और जो भी उसके इंटरनेशनल रिलेशंस थे, सब कुछ आप समझ लो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू गाइज आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। द वार इन कोरिया एंड इट इफेक्ट्स ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कोरिया में वार हुआ था उस टाइम को, ठीक है, उस टाइम 1946 टू 1954, द लगभग 8 साल के अराउंड ये वार चला था, ओके, और ये वार कोरिया में चला था और इसके इंटरनेशनल रिलेशन में कि एक देश के साथ बाकी देश का जो रिश्ता था उसमें क्या इफेक्ट दिया, ओके, ये सब जाना। क्यूबा, क्यूबा एक बीमारी थी गाइज, जो उस टाइम पे भी काफ़ी मतलब इस वार सिचुएशन को इफेक्ट किया, ठीक है, क्यूबा नाम की बीमारी ने। और द वार्स इन वियतनाम 1946, 54 एंड 1961, 75, और उस टाइम पे कोरिया के साथ साथ जो वार चल रहा था वियतनाम पे वो भी चल रहा था 1946 से लेकर 1954 एंड 1961 से 75। तो मैं बोर्ड में लिखता हूँ फटाफट से, ओके। देखो, मेन फर्स्ट रीजन आप लिख सकते हो क्यूबा, सेकेंड रीजन आप लिख सकते हो 1946, 54, थर्ड रीजन लिख सकते हो वियतनाम वार, और इसका टाइमलाइन जो नीचे है ना ये है 1970 से लेके, नहीं सॉरी, 1961 से लेके 75। और जो 4 पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो भी काफ़ी इजी है, आप लोग ध्यान रखने, सारे कल के टेस्ट में आने वाले हैं। और क्वेश्चन पेपर इजी तो नहीं होने वाला, ये तो कंफर्म है, क्योंकि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ गाइस, कुछ मैं फ्लो में बोल दिया क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये क्लास 11 में हमारा फर्स्ट टर्मिनल है, तो क्वेश्चन पेपर काफ़ी मीडियम टाइप का होगा, ठीक है, जो कि मैं हम लोगों ने सिलेबस में कवर किया है, क्योंकि एक मंथ तो हमारा समर वैकेशन पे चला गया और उसमें भी हम लोगों को प्रोजेक्ट करने को दिया गया था और आप लोगों को भी दिया गए थे। तो या क्वेश्चन पेपर थोड़ा बहुत ईजी और ईजी रहने वाला है और टफ क्वेश्चंस कम आने वाले हैं, और जो भी आएंगे ना वही मतलब मेन मार्क्स होंगे, जो भी लास्ट के क्वेश्चन वो टफ आएंगे, तो आप लोग ट्राई करना कि लास्ट के क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेना, ओके ओके। तो चाइल्ड अंडर सेल्वाडोर एलएनडी, ओके, जो चाइल्ड था सेल्वाडोर के अंदर, चाइल्ड मतलब कोई बच्चा नहीं, ओके, ये एक आपका चैरिटी का नाम था उस टाइम का,
जो कि सेल्वंडर एलएनडी जो कि एक इंसान के अंडर था। ओके, देखो चाइल्ड एक ट्रस्ट फंड आप समझ सकते हो, और सेल्वंडर एलएनडी आप एक इसको एक इंसान की तरह समझ सकते हो। इसके अंडर जो वो चैरिटी काम कर रही थी वो भी बंद हो गया था 1970 से लेके 3 तक, मतलब 2003, 1970 से लेके 3, इसका मतलब आप इसको डिकोड करोगे तो अभी आएगा 2003, इतने टाइम तक बीच में बंद हो गया था। मोर यूनाइटेड स्टेट्स इंटरवेंशंस, और भी काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम थे एक स्टेट के साथ दूसरे स्टेट को, इसमें भी देखो आप अगर मेरा और मेरे छोटे भाई का एग्जाम्पल जैसे आप समझ लो, या फिर मेरा और प्रकाश सर का अगर लड़ाई चल रहा है उसके बीच में अलग सर घुसाएंगे, समझ लो ना, अगर मेरा मम्मी पापा के बीच में लड़ाई चल रही है उसके बीच में अगर मैं घुस जाऊंगा, मेरा छोटा भाई घुस जाएगा, तो उसी सिचुएशन को मोर यूनाइटेड नेशंस इंटरवेंशन कहा गया था। जैसे बाकी देश के साथ लड़ाई चल रही है उसके अंदर भी यूनाइटेड नेशंस घुस पड़ रहा था। ठीक है, अब समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि ये बोर्ड सब क्लियर आ रहा है। बस आप लोग जस्ट 2 मिनट रुकना। ओके, डिटेंट इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द 1970s टू द 1990s, 1970 से लेके 1990 के बीच में जो भी सारे आपके एक दूसरे देश से आपस में लफड़े थे वो सारे को कम करने लगे इंटरनेशनल रिलेशंस। मतलब देखो, अगर जैसे कि मैंने समझाया, अगर मम्मी पापा के बीच में लड़ाई चल रहा है, अगर मैं घुस जाऊँ तो मैं इसलिए नहीं घुस रहा क्योंकि मुझे भी लड़ाई में इंटरेस्ट लेना है, मैं इसलिए घुस रहा हूँ ताकि मैं दोनों को समझा सकूँ और कुछ मान विचार करके दोनों के बीच में समझौता करके मैं दोनों को फाइट को रोक सकूँ। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज टाइप का। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म इन ईस्टर्न यूरोप एंड द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, जो कि कम्युनिज्म था, ठीक है, जो कि मतलब एक दूसरे इंसान के एक मेरे और आपके प्रति से जो भेदभाव छूतछात जो भी था वो सब जब से खत्म होने लगा यूरोप में, क्योंकि उधर भी मिडिल हाई क्लास लोअर क्लास ये सब था। ठीक है, यूरोप में जहाँ से वो लोग खत्म होने लगा, कोल्ड वॉर भी तुरंत खत्म हो गया गाइज, और इंटरनेशनल रिलेशंस ट्रांसफर कर गए फर्दर रीडिंग। और जो भी सारे एक देश के साथ दूसरे देश का झगड़ा था या फिर कोलिशन था वो सब दोस्ती में बदल गया, और ये दोस्ती देखते देखते वार खत्म हो गया और हम लोग आज इतने आगे चले आए हैं कि हम लोग समुद्र से लेके चांद से लेकर मार्स तक सब कुछ डिस्कवर कर रहे हैं। तो या कल के हिस्ट्री एग्जाम में 20 मार्क्स आएंगे। चैप्टर 7 तो मैंने बता दिया, चैप्टर 2 काफी हार्ड रहने वाला है और मोस्टली चैप्टर 2 से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लोग फोकस करना चैप्टर 7 को कंप्लीटली सॉल्व करने का। ओके, चैप्टर 2 को आप लोग थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करना। या सो आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, अभी आप लोग सुना मत, बिल्कुल पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को जम के, या कल आपको हिस्ट्री एग्जाम में आपको प्रिपरेशन करनी है, और कमेंट में लिख देना ठीक है किसको कितना मार्क्स आने वाले हैं, और कल जो एग्जाम दिखाओगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना किसका एग्जाम कैसा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, बाय बाय, जय हिंद।